Hello students, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, Mail Merge. Learning outcomes. At the end of this chapter, you will be able to know the features of mail merge the components of the mail merge, and view and print the merged data. Warm up. Shubham has recently adopted a puppy. He wants to throw a party for its homecoming. To invite his friends, he has written a letter in MS Word 2016. Now he wants to send the same letter to his 15 friends. Discuss the ways he can do the same without taking much time. अच्छा देखिए, शुभम ने एक पपी को अडॉप्ट किया है. अब वो एक पार्टी थ्रो करना चाहता है. अब वो क्या करता है, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करने के लिए वो एक लेटर टाइप करता है MS Word 2016. अब वो चाहता है कि वो अपने 15 फ्रेंड्स को भेजे सेम लेटर. तो अब आपको बताना है कि किस तरह से ये कर सकता है बिना मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लेना उसको. तो कैसे करेगा, वो क्या करेगा, सबको ही मेल करेगा. ओके, सेम लेटर. Hello friends, let's learn about the mail merge features 2016. It saves our time and effort to send letters at multiple addresses. तो देखिए, हम मेल मर्ज फीचर 2016 के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. ओके, Your school sends the same circulars to all the students from classes 1 to 12 on the daily basis. Do you think they type the emails of the students one by one? No. They use MS Word's famous feature, Mail Merge. Mail Merge feature of Word 2016 is used to combine data source, which contains all the addresses with the main document. This definitely saves a lot of time. Let's learn about this feature in detail. अच्छा देखिए, आपके स्कूल में सर्कुलर्स भेजे जाते हैं स्टूडेंट्स को डेली बेसिस पे, या कई बार होते हैं वीकली भेजा जाता है, और वो सेम सर्कुलर होते हैं क्लास 1 से लेकर जैसे 12 तक. तो क्या वो हर बच्चे को 1 by 1 मेल करेंगे? नो. वो मेल मर्ज का यूज़ करते हुए सेम सर्कुलर 1 to क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स को वो भेजा जाता है. ओके, तो ये आपका जो मेल मर्ज फीचर है 2016 का, इसमें हम डेटा सोर्स को कंबाइन, इसको यूज़ किया जाता है डेटा सोर्स को कंबाइन करने के लिए, जिसमें आपके एड्रेसेस होते हैं विद द मेन डॉक्यूमेंट. और इससे क्या होता है, देखिए सेम सर्कुलर को भेजा जा रहा है इतने सारे बच्चों को, तो ऑफकोर्स हमारा टाइम बचता है. ओके, तो चलिए डिटेल में जानते हैं फीचर को. सबसे पहले मेल मर्ज. मेल मर्ज इज अ वेरी एफिशिएंट टूल ऑफ MS Word. It is possible to write and send a letter or email to multiple recipients at once using the mail merge feature in Microsoft Word. From this tool, we can create form letters, mailing labels, and envelopes by combining main documents with a data source. तो मेल मर्ज आपका क्या है, इसमें देखिए इसमें पॉसिबल हो पाता है कि आप लिखें लेटर को, सेंड करें या ईमेल करें मल्टीपल रेसिपेंट्स को एट वंस. ओके, इस टूल्स की हेल्प से आप लेटर्स फॉर्म कर सकते हैं, मेलिंग लेबल्स है, एनवलप्स है. आपको जस्ट करना है कि मेन डॉक्यूमेंट्स को आपने कंबाइन करना है विद अ डेटा सोर्स. लेट अस नो अबाउट two very important components of mail merge. Number 1, main document. It contains the text which we want to send to all the recipients. Data source, it consists of personalized information such as name, address, city, and phone. Numbers. This information is organized in tabular form with the field names. Okay. अब देखिए, आपके दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मेल मर्ज के. सबसे पहले मेन डॉक्यूमेंट, इसमें वो टेक्स्ट होता है जो आप सारे रेसिपिएंट्स को सेंड करना चाहते हैं. डेटा सोर्स में क्या होता है कि पर्सनलाइज इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि नेम, एड्रेस, सिटी, फोन नंबर्स. ओके. Creating the main document. Follow the given steps to create the main document. Steps number 1, create a new document and type a letter that you want to send to multiple addresses. 2, click on the mailings tab. 3, click on start mail merge drop down arrow and select the step-by-step mail merge wizard option. 4, the mail merge pane appears on the right side of the window. अब आपको क्या करना है, मेन डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है. तो सबसे पहले न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, एक लेटर टाइप करेंगे जो हमें मल्टीपल एड्रेसेस में सेंड करना है. ओके, फिर हम क्लिक करेंगे मेलिंग टैब में, फिर क्लिक करेंगे स्टार्ट मेल मर्ज ड्रॉप डाउन एरो पे, और इसमें आपने सेलेक्ट करना है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजर्ड ऑप्शन को. अच्छा, अब आपका जो मेल मर्ज पेन है ये आपके राइट साइड विंडो की अपीयर हो रहा है. राइट. फॉलो द गिवन स्टेप्स टू क्रिएट द डॉक्यूमेंट. स्टेप्स नंबर 1, under the select document type section, select the letters radio button. 2, click the next starting document under the step 1 of 6 section at the bottom of the task pane. Under the select starting document section, click on the use the current document option.
4. Under the step 2 of 6 section, click the next select recipients. There are 3 ways to create the recipient list. Number 1, use an existing list. Select a list. If you already have one, then click OK. 2. Select from Outlook contacts. Select a list from the address book of Outlook. 3. Type new list. If you don't have a list, choose this option to build a list to be combined with your document. Okay. अच्छा चलिए, अब आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको क्या करना है? आपके पास ये जो सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप सेक्शन है, यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है लेटर्स रेडियो बटन को. ओके ओके, फिर आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट अंडर द स्टेप 1 ऑफ 6 सेक्शन. ये आपके टास्क पेन के देखिए बॉटम पे ना. ओके, फिर आप क्लिक करेंगे यूज द करंट डॉक्यूमेंट ऑप्शन पे. फिर अंडर द स्टेप 2 ऑफ 6 सेक्शन क्लिक करेंगे नेक्स्ट और फिर रेसिपिएंट को सिलेक्ट करेंगे. अच्छा, 3 तरीके हैं रेसिपिएंट को सिलेक्ट करने के लिए. आपके पास पहला ऑप्शन है यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, जिसमें मतलब आपके पास ऑलरेडी लिस्ट है, आपको जस्ट ओके पे क्लिक करना है. दूसरा है आउटलुक, सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट्स, तो एक लिस्ट आपने एड्रेस बुक ऑफ आउटलुक से सिलेक्ट करनी है. एंड थर्ड वन इज टाइप अ न्यू लिस्ट, मतलब आपके पास लिस्ट है ही नहीं, आपने उसको क्या करना है, एक लिस्ट आपने बिल्ड करनी है. ओके, नेक्स्ट creating the data source. If there is no list, then we need to create a new list. अगर आपके पास लिस्ट ही नहीं है, then हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हमें एक न्यू लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा. ओके, फॉलो द गिवन स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू लिस्ट. स्टेप्स नंबर 1, क्लिक ऑन द create button to the new address list appears. Follow the given steps to enter records. Steps 1, to add values to the list, click on the new entry button. 2, fill in the information in the new address list. 3, if you want to enter more records, click on the new entry button. 4, click on the OK button. 5, give the appropriate name and click on the save button. Okay. अब आपको देखिए लिस्ट कैसे प्रिपेयर करनी है, आपने क्रिएट करनी है. सबसे पहले तो आप क्लिक करेंगे क्रिएट बटन पे, अब न्यू एड्रेस लिस्ट अपीयर हो जाएगा. ओके, नाउ व्हाट विल यू डू, अब आपको रिकॉर्ड्स एंटर करने हैं. ओके, आपने लिस्ट में वैल्यूज ऐड करने हैं, तो इसके लिए आप क्लिक करेंगे न्यू एंट्री बटन पे. ओके, फिर आपने इंफॉर्मेशन फिल करनी है न्यू एड्रेस लिस्ट में. ओके, अगर आप और ज़्यादा रिकॉर्ड्स को एंटर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप न्यू एंट्री बटन पे क्लिक करेंगे. ओके, फिर आप क्लिक करेंगे ओके बटन, फिर एक अप्रोप्रिएट नेम देंगे इसे एंड देन सेव बटन पे क्लिक कर देंगे. ओके, नेक्स्ट, merging the components of mail merge. After creating the data source, merge both the components, main document and data source together. अब देखिए data source create करने के बाद हमने दोनों ही components को merge करना है, यानी कि main document and data source को साथ में. Follow the given steps to merge these two steps. Number 1, select the record you want to merge and click OK. 2, on the mailings tab, click on the insert merge field button to insert the fields from the database. 3, select the field you intend to add and the field name will appear in the document. Okay. अब आपको देखिए करना क्या है, सबसे पहले आपने रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करना है जिसे आप मर्ज करना चाहते हैं. ओके, देन आप ओके पे क्लिक करेंगे, फिर मेलिंग टैब्स पे जाएंगे और क्लिक करेंगे आपका इंसर्ट मर्ज फील्ड बटन. इससे आपके जो फील्ड्स हैं वो इंसर्ट हो जाएंगे फ्रॉम द डेटाबेस. नाउ उस फील्ड को सिलेक्ट करना है जिसे आप ऐड करना चाहते हैं और आपका जो फील्ड नेम है आपके डॉक्यूमेंट में अपीयर हो जाएगा. ओके, डू यू नो टू इंसर्ट अ मर्ज फील्ड वी कैन प्रेस ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एफ की कॉम्बिनेशन. मर्ज फील्ड को इंसर्ट करने के लिए आपके पास की कॉम्बिनेशन है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एफ. ओके, नेक्स्ट, व्यूइंग द मर्ज्ड डेटा. फॉलो द गिवन स्टेप्स टू प्रीव्यू द मर्ज्ड डेटा. स्टेप्स 1, on the mailings tab, click on the preview results button. Alternatively, click the next preview your letters under the step 4 of 6 section. 2, the data stored in the fields will appear. 3, once you have previewed the records, click on the finish merge button. Okay, अब देखिए आपको क्या करना है, मेलिंग्स टैब पे आप जाएंगे, क्लिक करेंगे प्रीव्यू रिजल्ट्स बटन पे, या फिर ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हैं, क्लिक द नेक्स्ट प्रीव्यू योर लेटर्स.
आपका जो अंडर द स्टेप 4 ऑफ 6 सेक्शन है इसमें। ओके, अब आपका जो डेटा है स्टोर्ड फील्ड में अपीयर हो गया, और एक बार आप रिकॉर्ड्स को प्रीव्यू कर लें, इसके बाद आपने क्लिक करना है फिनिश मर्ज बटन पे। ओके, नेक्स्ट, प्रिंटिंग द मर्ज्ड डॉक्यूमेंट। इफ यू विश टू डायरेक्टली प्रिंट द लेटर्स फ्रॉम द फाइल टैब, सेलेक्ट द प्रिंट ऑप्शन. If you intend to save the individual letters permanently and edit them later, click on the Edit Individual Letters option. Okay. अगर आप लेटर्स को डायरेक्टली प्रिंट करना चाहते हैं, देन फिर आप क्या करेंगे, फाइल टैब में से सिलेक्ट करेंगे प्रिंट ऑप्शन को. ओके, और अगर आप चाहते हैं इंडिविजुअल लेटर्स को आप सेव करना चाहते हैं परमानेंटली, और उनको मतलब आप एडिट करेंगे आप बाद पे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एडिट इंडिविजुअल लेटर्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. ओके, रिमेंबर इट, to print the merged document, Alt plus Shift plus M key combinations can be used. Merged document को print करने के लिए आपके पास combination key है, which is Alt plus Shift plus M key. Okay, let's recall. Mail merge is a very efficient tool of MS Word which allows you to write and send a letter or email to multiple recipients. Mail merge consists of the main document and a data source. Main document contains the text which we want to send to all the recipients. Data source consists of personalized information such as name, address, city, and phone. Mail merge saves time and typing efforts. Procedure you need to follow while using the feature of mail merging: creating the main document, creating the data source, merging the components of mail merge, viewing the merged data, and painting the merged document. Students, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, और चैप्टर की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.